Hello everyone. This video is a sample recording from our live classroom session for GATE and UGC NET Computer Science. If you want to enroll for the UGC NET Plus course or the GATE Plus course, please call us on the numbers that is given in this video, and you can also visit our website, which is www.digimeta.com. I hope you like the video, and please like and share with your friends. Okay, so examples like this, we have a main function. In this main function we have variables x, y and z, integer x, y and z. These are three variables. Then we have x single equal to 2 semicolon, y single equal to 1, and then we have z single equal to 0. We have three variables x, y and z. Values are 2, 1 and 0. And then I'm doing x equal to x double and y or z, and now I'm printing the value of x, printf the value of x, and then in the next statement we have print, we have the values are x or not of y, x or not of y and z, x or not of y and z. Then again we are doing x is equal to y is equal to 1, and then we have z is equal to x plus plus minus 1, and now I'm printing the value of x and z, printf the value of x, printf the value of z, and then we have some statements, but मैं उसको अभी नहीं ले रहा हूँ, उसको I'll explain later. So z plus equal to minus x plus 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 y. ठीक है. Then we have printf the value of x and printf the value of z, and then we have z equal to x division plus plus x, printf the value of x and printf the value of z. This is your program. I hope सभी के पास ये program होगा. If you got the program, just tell me and tell me the output of this program. So we'll take the output line by line. This is line number 1, line number 2, line number 3, line number 4. This is actually printf statement is 4. This is your line number 5, line number 6, line number 7, line number 8, line number 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. So I need the outputs of these statements. I'm not considering a separate line because मेरा जो aim है line number लिखने का वो ये है कि मैं बता सकूँ कि मैं किस statement के बारे में बात कर रहा हूँ. Okay. Now from every one of you, what is the output of line number 4? यानी कि printf x जो आपकी पहली printf statement है वहाँ पर output क्या होगा? अगर आपको आउटपुट नहीं आए, जस्ट राइट n. अगर आपको आउटपुट समझ में आता है, इफ यू हैव एनी गेसेस, आप अपना गेस भी यहाँ पर लिख सकते हो. फॉर लाइन नंबर 4 पहली जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है printf x, उसका आउटपुट क्या रहेगा? टेल मी द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट printf स्टेटमेंट. यू कैन ऑल्सो राइट योर गेसेस. अगर आपको नहीं समझ में आए देन जस्ट राइट n. n इज ऑल्सो फाइन. Okay, so I got answers from Mona, Debashri, Diksha and Sakshi. I think there are more people who are watching. You can also write your outputs, please. Output of this printf statement. It's okay, Debashri. I mean, we are here. इसी वजह से तो हम यहाँ पर हैं. That is why we are covering these examples. ये examples ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं जो प्रोग्रामिंग करते हैं. देखो, मोस्टली जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, आप किसी भी छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जाएंगे या ज़्यादातर कॉलेजेस या स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पर जब वो सी लैंग्वेज को पढ़ाते हैं तो वो बेसिकली सी लैंग्वेज को पढ़ाते हुए आपको बहुत इजी सीली एग्जांपल्स कराते हैं, जैसे कि स्टार कैसे बनेगा, ट्रायंगल कैसे बनेगा, ये सब चीज़ें वहाँ पर कराते हैं. लेकिन उन चीज़ों से आपको सी के बेसिक्स क्लियर नहीं होते. तो मैं जो यहाँ पर करा रहा हूँ वो बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से यानी कि बेसिक्स से कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपकी जो सी प्रोग्रामिंग के बेसिक्स हैं हम लोग उस चीज़ को कवर कर सके, ऐसी चीज़ें कवर कर सके जो दूसरे लोग कवर नहीं करते. अगर ऑब्वियसली ये सब चीज़ें दूसरे लोग कवर करते तो मेरी वैल्यू क्या थी, है ना. सो आप मुझसे नहीं पढ़ते, राइट. अगर आपको ऑलरेडी ये पहले पढ़ चुके होते। तो मैं यहाँ पर इन्हीं सब चीज़ों को कराने के लिए ऐसी चीज़ें मैं आपको कराऊंगा जो दूसरे लोग नहीं कराते।
और ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपके रैंक्स डिफाइन होंगे, आपका जो एग्जाम है वो क्लियर होगा। ये तो बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है, बहुत ईजी एग्जाम्पल है, हम इसे भी कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आगे आने वाले टाइम में मुझे लगता है आप सी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि मेरी गारंटी है कि आप इसके बाद सभी क्वेश्चंस कर लेंगे, राइट। ओके देवाश्री, ये सब एग्जाम्पल देख के मुझे लगा मुझे सी बिल्कुल नहीं आती। दीक्षा, मुझे आके भी नहीं आती, डोंट वरी। ओके डोंट वरी चंदन, विल टेक द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आल्सो। ये आपका पहला कमेंट है, आई डोंट नो आपका इससे पहले मेरे पास आपका कोई कमेंट नहीं आया है, आपका फर्स्ट कमेंट मेरे पास आया है। सो डोंट वरी, हम लोग पिछले क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम्पल्स हैं हम सभी को लेंगे और वो सभी चीज़ें आप सॉल्व करेंगे करके। तो मैं चाहता हूँ पहले थोड़े ईजी एग्जाम्पल्स ले लिए जाएँ, फिर आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्पल्स में सभी एग्जामिनेशन से लूँगा, गेट भी लूँगा, यूजीसी नेट भी लूँगा। उसके अलावा फिर आपके पास जो दूसरे एग्जाम्पल्स हैं D2+P के कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, फिर KVS PGT होगी, जो भी आपके गवर्नमेंट जॉब की जो प्रिपरेशन है, जो टेक्निकल कहीं पर भी आएंगे वो सब मैं कवर करूँगा। आपने मुझसे पढ़ा है तो मैं सभी टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब को या सभी एग्जामिनेशन आपके बेसिक से लेकर एंड तक सब कुछ कवर करूँगा, ठीक है। आपको कहीं और कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। श्योर, चले। ओके, सो बाय द वे जिसने पहली स्टेटमेंट का जो आउटपुट है, जिसने लिखा है 0, वो सभी रॉन्ग है। द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट हियर, दिस प्रिंटफ स्टेटमेंट इज 1, इट इज नॉट 0, इट इज 1। ऐसा इस वजह से, लेट अस सी कि ऐसा क्यों है, ठीक है। तो आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं x, y एंड z। आपने वेरिएबल x के अंदर वैल्यू को स्टोर किया विच इज 2, वेरिएबल y के अंदर वैल्यू को स्टोर किया विच इज 1 एंड वेरिएबल z के अंदर वैल्यू को स्टोर किया विच इज 0। ओके चंदन, आई वांट टू सी मोर कमेंट्स फ्रॉम योर साइड बिकॉज इज द फर्स्ट कमेंट जो मुझे आपकी तरफ से मिला है। सो आई वांट टू सी मोर कमेंट्स। मुझे पता भी नहीं था कि आप चैट के अंदर हैं, ठीक है। सो एग्जांपल लेते हैं। तो यहां पर जो आपकी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट इज x इक्वल टू x एम्परसेंड y, आई मीन डबल एंड y और z। अब देखो यहां पर कितने ऑपरेटर्स हैं, हाउ मेनी ऑपरेटर्स आर देयर। आपके पास पहला ऑपरेटर ये है विच इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर, पहला आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर है। सेकंड ऑपरेटर आपका ये वाला है विच इज योर लॉजिकल एंड ऑपरेटर। फिर थर्ड ऑपरेटर आपका ये वाला है विच इज योर लॉजिकल और ऑपरेटर, ठीक है। सो लॉजिकल एंड लॉजिकल और। अब प्रेसिडेंस टेबल से आप मुझे बताओ तीनों में से किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है। आपके पास 3 ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर एंड लॉजिकल और ऑपरेटर। 3 ऑपरेटर आपके पास है। आप इसमें चेक करोगे तो लॉजिकल एंड जो है इसकी प्रेसिडेंस आपकी लाइन नंबर 11 पर गिवन है, इसकी लाइन नंबर 11 पर इसकी प्रेसिडेंस गिवन है। लॉजिकल और की जो प्रेसिडेंस है वो लाइन नंबर 12 पर गिवन है, और जो सिंगल असाइनमेंट की जो प्रेसिडेंस है वो आपके लाइन नंबर 14 पर गिवन है। यानी कि सबसे जो कम प्रेसिडेंस है यहाँ पर वो सिंगल असाइनमेंट की प्रेसिडेंस है, ठीक है। सबसे कम प्रेसिडेंस इस ऑपरेटर की है। तो सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसकी है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर की, ठीक है। अब लॉजिकल एंड की सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस है, यानी कि सबसे पहले हम इन दोनों को इवैल्यूएट करेंगे, यानी कि x लॉजिकल एंड y, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू कितनी है 1। ये 2 है और 1 है, यानी कि दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। देखो आपके पास अगर 0 या फिर नल होता है इट मीन्स इट इज फॉल्स, एंड एनीथिंग एल्स इज ट्रू, ठीक है। जैसे कि यहां पर 2 एंड 1 है, बोथ आर ट्रू, तो यहां पर दिस इज ऑल्सो ट्रू, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा हमारे पास 1। ट्रू का आउटपुट मतलब 1, ठीक है। अब ये आपका ट्रू है तो हम यहां पर और ऑपरेटर को इवैल्यूएट करेंगे। अब देखो और ऑपरेटर के केस में क्या होता है, आपको एंड और ऑपरेटर का बेसिक फंक्शनलिटी आपको पता होना चाहिए। अगर लिखता हूं दिस इज x एंड दिस इज y एंड दिस इज x एंड y, ठीक है। इफ दिस इज फॉल्स, बोथ आर फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स एंड ट्रू ट्रू। अब एंड ऑपरेटर अगर दोनों ट्रू है तभी ट्रू होता है, अदरवाइज इट इज फॉल्स इन ऑल दीज केसेस। उसी तरीके से अगर आपको और ऑपरेटर पता हो, अगर मैं लिखता हूं दिस इज x y एंड दिस इज x और y, दिस इज फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स एंड ट्रू ट्रू। सो अगर दोनों फॉल्स है तभी ये फॉल्स है, अदरवाइज इट इज ऑलवेज ट्रू। अब यहां पर चेक करो, हमें ऑलरेडी पता है कि हमारी लेफ्ट साइड ट्रू है,
तो हमें राइट साइड को चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, राइट साइड को इवैल्यूएट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस पूरी स्टेटमेंट का जो आउटपुट है यहाँ पर, दिस आउटपुट इज गोइंग टू बी 1। सो ये जो 1 वैल्यू है, दिस वैल्यू 1 विल बी स्टोर्ड इन x, देयरफॉर x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1। सो आउटपुट ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज 1। आपकी पहली स्टेटमेंट का आउटपुट होगा यहाँ पर 1। नाउ टेल मी द आउटपुट ऑफ द नेक्स्ट स्टेटमेंट, जो लाइन नंबर 5 है आपके पास, लाइन नंबर 5 का आप आउटपुट बताइए। टेल मी द आउटपुट ऑफ द सेकंड स्टेटमेंट विच इज लाइन नंबर 5, x और नॉट ऑफ y एंड z। यहां पर आपके पास ये जो और ऑपरेटर है, दिस इज लॉजिकल और, दिस इज योर लॉजिकल नॉट ऑपरेटर एंड दिस इज योर लॉजिकल एंड ऑपरेटर। टेल मी द आउटपुट ऑफ दिस लाइन नंबर 5। अगर आपको आता है तो गिव मी द आउटपुट इन दिस लाइन, अदरवाइज राइट n और यू कैन ऑल्सो गेस द आउटपुट। Output of this statement, line number 5. The output is. Tell me the output, please. Devashri got it. Mona got it. Diksha, Chandan. What is the output of the next statement? The output is. Yes, the output is 1. Okay. पजल बुक में से आउटपुट नहीं देखना, जो आउटपुट मैं बता रहा हूँ यहाँ से आपको लॉजिक पता होना चाहिए, बिकॉज लॉजिक्स ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपको आंसर नहीं आता वो मैटर नहीं करता, आपका आंसर निकले मैटर नहीं करता, मतलब सिर्फ मैटर करता है कि कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। एग्जाम के अंदर अगर आप अभी जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप करेंगे, इन सभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर आप कितना भी गेसिंग कर लीजिए या फिर कितने भी आप आंसर्स को देख लीजिए, या अगर आपको सिर्फ आउटपुट पता हो तो डजंट मैटर, ओनली थिंग इज आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम के केस में कॉन्सेप्ट आएगा, आउटपुट से मैटर नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके पास है x और नॉट ऑफ y एंड z। x और ओके, सो x और नॉट ऑफ y एंड z। अब यहां पर 3 ऑपरेटर्स हैं। ओके फाइन, सो x और नॉट ऑफ y एंड z। सो बाय द वे वहां पर आउटपुट है, बट अभी चेक नहीं करना, उस बुक के अंदर एक्सप्लेनेशन भी है, बट आई डोंट वांट यू टू चेक इट, बिकॉज मैं करा रहा हूँ ना, तो मुझसे तो मैं आउटपुट बताऊंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर 3 ऑपरेटर्स है आपके पास। पहला है आपके पास लॉजिकल और, फिर सेकंड ऑपरेटर आपके पास लॉजिकल नॉट, पहला लॉजिकल और, दूसरा है लॉजिकल नॉट, और तीसरा ऑपरेटर है यहाँ पर लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर। अब देखो, आप ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल पर जाओ और चेक करो कि सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसकी है। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल पे आप जाओगे, चेक इट, सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसकी है। अब लाइन नंबर 2 पे चेक करोगे। सो लाइन नंबर 2 पे आप चेक करोगे, सेकंड प्रेसिडेंस इज योर लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ठीक है, अब लॉजिकल नॉट ऑपरेटर के बाद आप फिर जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर आपके पास है वो लाइन नंबर 11 पे उसकी प्रेसिडेंस गिवन है, और लॉजिकल और ऑपरेटर के अंदर लाइन नंबर 12 के अंदर उसकी प्रेसिडेंस गिवन है। तो आपके पास है सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस है यहाँ पर लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। इसका मतलब है कि आपके पास सबसे पहले आप नॉट ऑफ y को इवैल्यूएट करेंगे, सबसे पहले आप किसको इवैल्यूएट करेंगे, नॉट ऑफ y। ठीक है, नॉट ऑफ y, नॉट ऑफ y का मतलब क्या है, देखो y की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, y इज 1 मीन्स ट्रू। ठीक है, सो y इज ऑलरेडी ट्रू, लेकिन नॉट ऑफ y की वजह से दिस विल बिकम फॉल्स, नॉट ऑफ y की वजह से दिस स्टेटमेंट हियर इट विल बिकम फॉल्स। ठीक है, आई होप यू गॉट इट, आपको समझ आया होगा, प्लीज चेक। सो अब उसके बाद आपके पास सबसे पहले प्रेसिडेंस थी यहाँ पर नॉट ऑपरेटर की। अब जो सेकंड प्रेसिडेंस है यहाँ पर, वो प्रेसिडेंस है आपके पास एंड ऑपरेटर की, यानी कि अब हम इवैल्यूएट करेंगे इस स्टेटमेंट को, यानी कि हमें पता है कि नॉट ऑफ y इज ऑलरेडी फॉल्स, या आपका फॉल्स है।
अब हमें एंड ऑपरेटर को सेकंड इवैल्यूएट करना है बिकॉज इसकी प्रेसिडेंस जो है वो और ऑपरेटर से ज्यादा है। अब देखो एंड ऑपरेटर में हमें ऑलरेडी पता है कि लेफ्ट साइड आपकी फॉल्स हो चुकी है, तो हम राइट साइड को इवैल्यूएट नहीं करेंगे। देखो इस स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है, इसको नोट डाउन कर सकते हो आप, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड ऑपरेटर में अगर लेफ्ट साइड हमें पता है ऑलरेडी फॉल्स है तो हम राइट को इवैल्यूएट नहीं करेंगे, उसकी जरूरत ही नहीं है। उसी तरीके से और ऑपरेटर में अगर लेफ्ट साइड ऑलरेडी ट्रू है तो हम राइट साइड को इवैल्यूएट नहीं करते। तो यहां पर हमें पता है कि y फॉल्स है तो हमें z को चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ये ऑलरेडी इस पूरे स्टेटमेंट का जो आउटपुट है दैट विल बी फॉल्स। ठीक है, यहां से यहां तक। अब हमारे पास थर्ड हाईएस्ट प्रेसिडेंस इज विद और ऑपरेटर। अब इस और ऑपरेटर के केस में हमारे पास x है, x की वैल्यू 1 है, 1 मीन्स इट इज ट्रू, तो ट्रू हुआ, सो दिस मीन्स ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स मीन्स इट इज ट्रू। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है इसका जो प्रिंटर स्टेटमेंट है इसका आउटपुट होगा 1, सेकंड का आउटपुट होगा यहां पर 1। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, सो इफ इट इज क्लियर टेल मी, जस्ट राइट y अगेन। इफ इट इज क्लियर देन आई विल टेक द नेक्स्ट स्टेटमेंट व्हिच इज स्टेटमेंट नंबर 8 एंड 9। और इसके बाद स्टेटमेंट नंबर 8 और 9 का आउटपुट मुझे बताइए प्लीज। करेक्ट, कांग्रेट्स। सो स्टेटमेंट नंबर 8 और 9 का आउटपुट देवाश्री प्लीज। Everyone, statement number 8 and 9. 8 is 1 and 9 is 1. Okay. Any other answer? Output of the statement number 8 and 9. Okay. So, you can see here in the statement number 6, we are saying x and y. In both these places, I want to store 1. ठीक है. So, सबसे पहले हम लोग y is equal to 1 करेंगे, उसके बाद हम लोग इसकी जो वैल्यू है y की उसको x के अंदर स्टोर करेंगे। ठीक है, तो यानी कि आफ्टर दिस स्टेटमेंट नंबर 6 आपके पास वेरिएबल x के अंदर वैल्यू 1 है, y के अंदर वैल्यू 1 है और z के अंदर वैल्यू 0 है। करेक्ट। सो अब चेक करो स्टेटमेंट नंबर 7 के अंदर जो स्टेटमेंट है दैट इज z इक्वल टू x प्लस प्लस माइनस 1, x प्लस प्लस माइनस 1। अब देखो यहां पर आपके पास 3 ऑपरेटर्स हैं। द फर्स्ट ऑपरेटर इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर, दिस इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर। द सेकेंड ऑपरेटर इज योर पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। एंड थर्ड ऑपरेटर हियर दिस इज योर बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन। ठीक है, नाउ गो टू योर प्रेसिडेंस टेबल। आप प्रेसिडेंस टेबल चेक करो। असाइनमेंट ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस है वो लाइन नंबर 14 के अंदर गिवन है। पोस्ट इंक्रीमेंटेशन ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस है वो आपकी लाइन नंबर 1 के अंदर गिवन है, यानी कि पोस्ट इंक्रीमेंटेशन ऑपरेटर की प्रेसिडेंस इन सब में सबसे ज्यादा है। आपके पास पोस्ट इंक्रीमेंटेशन ऑपरेटर या फिर पोस्ट डिक्रीमेंटेशन ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद आपके पास बाइनरी सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है, और बाइनरी सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन जो है आप चेक कर सकते हो ये लाइन नंबर 4 के अंदर गिवन है, यानी कि सबसे पहले हम पोस्ट इंक्रीमेंटेशन ऑपरेशन करेंगे, फिर हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन करेंगे और फिर हम असाइनमेंट करेंगे। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू कितनी है 1। पोस्ट इंक्रीमेंटेशन का मतलब क्या है कि हम पहले x की वैल्यू को लेंगे, x की वैल्यू को यूज करेंगे, फिर उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने यहाँ पर x प्लस प्लस किया तो x प्लस प्लस का मतलब क्या है कि पहले हम x प्लस प्लस करेंगे, तो पहले हम x प्लस प्लस करेंगे, तो x की वैल्यू 1 थी तो हमने 1 को यूज किया और इसकी वैल्यू हो जाएगी अब 2। फिर 1 माइनस 1 इज 0, सो 1 माइनस दिस वैल्यू इज 1, सो 1 माइनस 1 इज 0, यानी कि z के अंदर 0 स्टोर होगा। देयरफॉर द आउटपुट ऑफ दिस स्टेटमेंट इज द वैल्यू विच इज स्टोर्ड इन z इज 0। ठीक है, सो x की वैल्यू हो गई 2 और z की वैल्यू हो गई 0। तो जब हम यहाँ पर प्रिंट x करेंगे तो x की वैल्यू प्रिंट होगी यहाँ पर 2। ठीक है, बिकॉज प्रीवियस केस में x की वैल्यू हमने 1 की थी तो x की वैल्यू 2 प्रिंट होगी और z की वैल्यू प्रिंट होगी यहाँ पर 0। सो आंसर इज 2 and 0। जो 1 1 बोल रहा था वो भी रॉन्ग है, 2 2 बोल रहे थे वो भी रॉन्ग है। द आंसर इज 2 and 0। आई होप इट इज फाइन, सबको समझ में आया। 2 and 0, सो 0 1 भी गलत है। आई थिंक 2 and 0 इज द करेक्ट आंसर। If you understood this, please write y so that I can move on to the next statement. Okay, so Debashri, you can see here, आपके पास 3 ऑपरेटर्स थे यहाँ पर, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है, बाइनरी सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन
और असाइनमेंट ऑपरेटर। सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंटेशन ऑपरेशन की है। ओके साक्षी, सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंटेशन ऑपरेशन की है, यानी कि हम पहले x की वैल्यू को यूज करेंगे फिर उसको इंक्रीमेंट करेंगे। तो x की वैल्यू थी हमारे पास 1, तो लाइन नंबर 6 में हमने x की वैल्यू को 1 कर दिया था, तो हम लोग x की वैल्यू 1 को यूज करेंगे, तो यहाँ पर जो वैल्यू रिटर्न होगी 1 होगी और फिर प्लस प्लस के x की वैल्यू होगी 2। ठीक है, तो ये आंसर होगा 1 - 1 बिकॉज इट इज पोस्ट इंक्रीमेंट। सो 1 - 1 इज 0। सो जो वैल्यू z के अंदर स्टोर होगी दैट इज 0। आई होप ये समझ आया होगा सबको। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज लाइन नंबर 10। अब जो लाइन नंबर 10 है उसको मैं इस समय पर अभी कवर नहीं कर रहा हूं बिकॉज लाइन नंबर 10 और जो लाइन नंबर 13 है दोनों को समझने के लिए आपको कुछ और कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है, जिसमें आपके पास सी लैंग्वेजेस के डिसएडवांटेजेस आपको पता होना चाहिए, मतलब डिसएडवांटेज कहो या फिर साइड इफेक्ट्स। तो आपके पास सी लैंग्वेज के अंदर कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, कुछ स्टेटमेंट्स के साइड इफेक्ट्स हैं जो कि प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड नहीं है, तो हम लोग उसको कवर करेंगे। बट अगेन मैं आपको लाइन नंबर 13 का एक एग्जाम्पल बताता हूँ साइड इफेक्ट क्या है। ठीक है, तो लाइन नंबर 13 में क्या है हमारे पास, z = x डिवीजन प्लस x। अगर आप इस स्टेटमेंट को देखेंगे तो आप जाएंगे पहले प्रेसिडेंस ऑपरेटर के प्रेसिडेंस टेबल के बाद और चेक करोगे किससे ज्यादा प्रेसिडेंस है, तो आपको लगेगा कि सर प्रेसिडेंस तो सबसे ज्यादा इसकी है, तो यानी कि हमें सबसे पहले प्री इंक्रीमेंटेशन ऑपरेशन को इवैल्यूएट करना चाहिए और उसके बाद हमें डिवीजन ऑपरेटर को इवैल्यूएट करना चाहिए। बट द प्रॉब्लम इज जो हमारे पास ये जो न्यूमरेटर में x है, जो न्यूमरेटर में x है, क्वेश्चन ये आता है कि न्यूमरेटर x के अंदर वैल्यू कौन सी होगा, क्या ये प्री इंक्रीमेंटेशन से पहले वाली वैल्यू यहां पर रहेगी या फिर प्री इंक्रीमेंटेशन के बाद वाली वैल्यू रहेगी यहां पर। तो ये जो x की वैल्यू है, न्यूमरेटर वाले x की वैल्यू, आपको नहीं पता कि न्यूमरेटर के x की वैल्यू क्या होगी। एक्चुअली जब सी लैंग्वेज को बनाया गया था, सो इनिशियली सी लैंग्वेज को बनाने के बाद काफी सालों तक सी लैंग्वेज के अंदर डेवलपमेंट चलती रही और फिर उसको एक स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी, जैसे कि आपने स्टडी किया होगा ANSI, सो वो एक स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी थी जिन्होंने सी लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज किया, यानी कि उसके कुछ फीचर्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया, जैसे कि हमारे पास अरेज किस तरह से होंगे, जो भी फीचर्स है जो यहाँ पर उन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन यहाँ पर की थी। अब स्टैंडर्डाइजेशन के बाद कुछ ऐसी चीजें थी जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन पॉइंटिंग का एक कॉन्सेप्ट आता है, फंक्शन पॉइंटिंग, जिसके अंदर कॉमा से सेपरेट कुछ स्टेटमेंट है, उसमें से एक स्टेटमेंट का ऑर्डर क्या इवैल्यूएट होगा, या फिर उसके अलावा जैसे ये है, तो इस स्टेटमेंट में हम जो न्यूमरेटर वाले x की वैल्यू प्री इंक्रीमेंटेशन से पहले वाली वैल्यू लेंगे, प्री इंक्रीमेंटेशन के बाद वाली वैल्यू लेंगे, हमें नहीं पता क्लियरली यहाँ पर। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर x की, ये जो वैल्यू है ये आपकी कंपाइलर डिपेंडेंट वैल्यू है। उन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी ने इसको स्टैंडर्डाइज नहीं किया, बट रेदर उन्होंने बोला कि जो भी आपका कंपाइलर है, जो कंपाइलेशन जो भी कंपनी कंपाइलर इसका डिजाइन करेगी, जो कंपाइलर को डेवलप करेगी कंपनी, वो कंपनी इसके प्रेसिडेंस को डिफाइन करेगी, यानी कि जो न्यूमरेटर है उसके वो x के प्री इंक्रीमेंटेशन से पहले वाली वैल्यू लेगी या फिर x के प्री इंक्रीमेंटेशन के बाद वाली वैल्यू लेगी। तो ये आपको क्लियरली डिफाइंड नहीं है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ साइड इफेक्ट इन द सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में काफी लोकेशंस ऐसी हैं जहां पर आपको साइड इफेक्ट्स मिलेंगे, यानी कि जो आपका आउटपुट है वो कंपाइलर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मैं आपको ऐसे कई सारे एग्जांपल्स दूंगा, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स कवर करूंगा जहां पर आपका जो प्रोग्राम का आउटपुट है वो कंपाइलर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी कौन से कंपाइलर आप यूज करें उसके अकॉर्डिंग आपके डिफरेंट आउटपुट आएंगे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, गॉट इट? इज इट फाइन? Now take the next example in your C puzzle book. Take the next example here. Great. So we have a next example. Example number 4, that is for the bitwise operator. Check करो. This is at the page number 11. So page number 11 में आपका example number 4 आएगा. उसको check कीजिए please.